Hello and welcome back to my channel of Simplified Psychopathology. This is Ritvik Sharma, your host. In my last videos, I was talked about eating and feeding disorder. In my this series of videos, I will talk about sleep, sleep cycle, and their stages, and about sleep disorders. And if you have not seen my last videos on eating and feeding disorder, please go ahead and check. And if you have any questions related to that topic, please comment in my comment section. So in this video, I will talk about sleep, sleep cycle, and their stages, and also how the sleep disorders are classified according to DSM-5 and how they are diagnosed. And okay, let's talk about what's the content in this video. Okay, so what are the contents? What is sleep? Why do we sleep? How do we sleep? How should we sleep? Sleep cycle and stages of sleep, good sleeping habits, or how to improve sleep. Okay, let's see what is sleep. Okay, and what is sleep? Sleep is a normal body process that allows your body and brains to rest. ओके, नॉर्मल बॉडी प्रोसेस है जब आप बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाते हो, आपका माइंड बहुत ज्यादा एग्जॉस्ट हो जाता है, तो आपको बॉडी रेस्ट करने के लिए वो तैयार होता है. दैट इज व्हाट इज स्लीप इज फॉर मोस्ट पीपल, जस्ट अ मैटर ऑफ गेटिंग कंफर्टेबल. बहुत ज्यादा थक जाते हैं तो कंफर्टेबल करने के लिए सोते हैं. दैट इज व्हाट इज स्लीप. Closing your eyes and drifting into slumber. But despite how simple it is, sleep is one of the most complex and mysterious body process known to science. बहुत ज्यादा complex है, mysterious है, known to science, because हमें अभी बहुत ज्यादा sleep के बारे में पता नहीं. That is why it is mysterious. Sleep is a state of reduced mental and physical activity. यहाँ पे आपका mental और physical activity बहुत ज्यादा कम हो रहा है, in which consciousness is affected and sensory activity भी बंद हो जाती है. अब स्लीप क्यों रिक्वायर्ड है? व्हाई डू वी नीड स्लीप? आपका एनर्जी कंजर्वेशन के लिए चाहिए, फिजिकल एक्टिविटी कम हो रही है, ब्रेन भी कम काम कर रहा है, तो यहाँ पे एनर्जी कंजर्वेशन हो रहा है और स्टोरेज हो रहा है जिससे कि आप दूसरे दिन काम कर सको. सेल्फ रिपेयर एंड रिकवरी के लिए भी चाहिए, जैसे कि आपको बॉडी जब काम नहीं करेगी तो आपका रिपेयर होगा मसल्स का, आपका सेल्स का रिपेयर होगा, फिर रिकवरी होगी. ब्रेन मेंटेनेंस के लिए भी चाहिए, जिससे आपके ब्रेन जो है आप दूसरे दिन के लिए एक्टिव हो पाए और आपका जो जितना भी मेमोरी है उस दिन की वो रिस्टोर कर पाए. दैट इज व्हाट इज ब्रेन मेंटेनेंस. ठीक है, अब आप बात करते हैं हाउ डू वी स्लीप. स्लीप फिजियोलॉजी के बारे में बात करते हैं. इसमें वी विल टॉक अबाउट फर्स्ट द वेकफुलनेस एरियाज और द अराउजिंग एक्टिविटी सिस्टम, एक्टिवेटिंग सिस्टम. इसमें what we have is brain stem, thalamus, hypothalamus, and what are the brain chemicals required for arousing, activating? That is acetylcholine, histamine, dopamine, serotonin, and norepinephrine. Okay, and what is the sleep promoting system में आपका क्या क्या आ रहा है? Hypothalamus, ventrolateral preoptic nucleus, brain chemicals, GABA and ghrelin. Okay, these are the, this is what about the sleep physiology. इसमें arousal activating system में क्या क्या है और sleep promoting system में क्या क्या है. Then what we will talk about sleep physiology में आपका कैसे आप sleep physio, how do you wake up. So आप उठते कैसे हो? जो आपका लाइट है वो आपकी प्यूपिल्स को डायलेट करती है और जैसे सेंसरी ऑर्गन पे इफेक्ट करती है, फिर वो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपका कहाँ जाता है? आपका कैरिस्मेटिक न्यूक्लियस में जाता है, हाइपोथैलेमस का. फिर वो आपका ब्रेन स्टेम में जाता है, ब्रेन स्टेम से सारी इंफॉर्मेशन आपके थैलेमस में जाती है और हाइपोथैलेमस में और सारे ब्रेन के पार्ट्स में जाती है और फिर वो इंफॉर्मेशन देती है कि आप उठो. That is what which is happens which when you hear a noise from your ear, or is something, someone putting hand on your skin, or some kind of problem coming up there, and then you wake up. That is what which has happened. And then we talk about circadian rhythm, another part of a sleep. Okay, and this is a rhythm of the sleep in which how you see the melatonin release starts before midnight. That helps you in sleep. Okay, people with smoking and having problems of anxiety and other thing, the melatonin, the hormone will not work perfectly. Then you will not be able to have sleep. And then we have restorative sleep after midnight, deep sleep, REM sleep. इसके बाद melatonin कम हो जाता है. Then you wake up स्टार्ट ऑफ द डे व्हेन लाइट हिट्स द आईज. वही मैंने पहले बात करी, मैक्सिमम अराउजल हो जाता है आपके बॉडी का. फिर नून में और आपका मेलाटोनिन है ही नहीं, फिर फास्ट रिएक्शन टाइम होता है. फिर लिमिटेड कैफीन आप इनटेक करते हो, आपको करना भी चाहिए अगर आप कर रहे हो तो. 6 PM में
के बाद आपको लाइट डिम कर देनी चाहिए जिससे कि आप सो सको। फिर उसके बाद जब आप सोने, जिससे कि मेलाटोनिन आपका सही से निकल सके। दिस इज व्हाट अबाउट द कार्केडियन रिदम व्हिच हैपेंस, एंड दैट इज व्हाट हाउ यू द मेलाटोनिन रिलीजेस, एंड दैट इज व्हाई हाउ यू स्लीप। Okay, let's talk about melatonin and cortisol, how it works and how it helps you sleep. क्या होता है? What happens when you wake up? The cortisol level is high and the melatonin level is less. And when you slow down or when you're sleeping, the melatonin level is high and the cortisol level is less. This is what happens with cortisol and melatonin when you're sleeping and when you're waking up. Okay, let's talk about the EEG pattern or the state. Let's talk about stages of sleep and what kind of EEG pattern are coming when in the stages of sleep. So when you're awake, your eyes are open. The person is alert and active. The beta waves are there. The beta waves are those beta waves which have low amplitude, high frequency waves. So your person is alert and active. So the brain is also alert and active. So what happens? There are lots of questions coming in your mind. You're thinking something, or there are problems coming in your mind. So beta waves are there, high frequency waves. Alpha waves are also a little bit of low frequency. And talking because there are decrease in the level of alertness and relaxation is there. Non-REM sleep में आपका non-rapid eye movement, that is which you can say, and that is in stage 1 N1 में आपका transition from wakefulness है। ठीक है, ड्राउजी आप फील करो, लाइट स्लीप फील करो, थीटा वेव्स आ जाएंगे, इसमें और ज्यादा लो फ्रीक्वेंसी हो जाएगी। ठीक है, तो जिससे कि आपका ये है कि आपका ब्रेन अब काम थोड़ा कम कर रहा है, आप सोच कम रहे हो और बिल्कुल ही आप ड्राउजी फील करो। दैट इज व्हाट इज थीटा वेव्स आर कमिंग। फिर स्टेज N2 में क्या आता है? लेस रिस्पॉन्सिव हो जाते हो, डीपर स्लीप आने लगती है, HR एंड टेम्परेचर डिक्रीज हो जाता है। लॉन्गेस्ट स्टेज बाय टोटल ड्यूरेशन आपका ये लॉन्गेस्ट स्टेज होता है। इसमें थीटा वेव्स इसमें भी होती है, स्लीप स्पिंडल्स होते हैं, बर्स्ट ऑफ मोनोमॉर्फिक 12 to 14 हर्ट्ज वेव्स। इसमें क्या होता है स्लीप स्पिंडल्स में? These are the spindles which shows कि भाई यहाँ पे आपका स्लीप सबसे ज्यादा है। के कॉम्प्लेक्सेस अगर नेगेटिव शार्प वेव्स जिस पे आप उठ सकते हो अगर आप कोई आपको उठाने की कोशिश करे। स्टेज N3 स्लीप डीपलेस स्लीप होती है, स्लो वेव स्लीप। इसमें रेस्टफुल स्लीप होती है, डीपेस्ट नॉन REM स्टेज। आपका जो डीपेस्ट होता है डीप स्लीप का, मोर डिफिकल्ट टू अराउज, यहाँ पे आप उठने में और ज्यादा डिफिकल्ट होता है। डेल्टा वेव्स अब यहाँ पे आ जाती हैं। डेल्टा वेव्स क्या होती है? हाई एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी वेव्स। ये आपका डिक्रीज हो जाता है एज के साथ, N3 वाला जो पार्ट है। ठीक है, फिर आ जाता है REM स्टेज, फिर रैपिड आई मूवमेंट वाला स्टेज आ जाता है। इसमें EEG में क्या होता है? मिक्स्ड लो वोल्टेज पैटर्न, सॉ टूथ वेव्स। EOG में आ जाता है REM, इररेगुलर शार्पली पीक्ड आई मूवमेंट। सो दैट इज व्हाई इट इज सेइंग इज कि REM रैपिड आई मूवमेंट। EMG में आता है एटोनिया ऑफ वॉलेंटरी मसल्स, आपके वॉलेंटरी मसल्स बिल्कुल रुक जाएंगे एक्सेप्ट आई एंड डायफ्राम। इनएक्टिविटी ड्यू टू इनहिबिटेड अल्फा मोटर न्यूरॉन्स, अल्फा मोटर न्यूरॉन्स आपकी इनहिबिट हो रही है, तो दैट इज व्हाई इनएक्टिविटी ऑफ वॉलेंटरी मसल्स आर देयर। ठीक है, अब स्टेज EEG फाइंडिंग्स इन स्लीप क्या है? वही मैंने बात करी अल्फा एंड बीटा वेव्स की, थीटा वेव्स की। यहाँ पे स्पिंडल्स हैं जो दिखाते हैं आप सो रहे हो और के कॉम्प्लेक्स में आप उठ सकते हो, दैट इज व्हाट इज इन थीटा वेव्स। डेल्टा वेव्स में क्या है? आपका हाईएस्ट एम्पलीट्यूड लो फ्रीक्वेंसी वेव्स, और यहाँ पे आपका एम्पलीट्यूड आपका फ्रीक्वेंसी हाई है, यू कैन सी इन अल्फा एंड बीटा वेव्स। ठीक है, so this is what are the EEG findings in the stages of sleep. Okay, then what can be the healthy rules for the sleep? So you can do a physical activity so that you can feel tired and you can get a healthy sleep. The temperature should be low of the room where you're sleeping, 16 to 19 degrees centigrade. And you can have some easy reading habits so that your brain can get tired and you can get fall asleep. Airing of the room should be there. The room should have proper air. Regimen of the day, जिस टाइम पे आप रोज सो रहे हो उसी टाइम पे सोना चाहिए। मेडिटेशन यू कैन हैव। कॉफी और टी का इंटेक कम करना चाहिए। अल्कोहल और सिगरेट्स का इंटेक भी कम करना चाहिए। ओवर ईटिंग नहीं करनी चाहिए रात में, जिससे कि आपको IBS और ब्लोटिंग के इश्यूज ना हो, आपको नींद में प्रॉब्लम ना आए। हॉरर एंड एक्शन मूवीज नहीं देखनी चाहिए जिससे आपको एंजाइटी हो सकती है। गैजेट्स नहीं यूज करने चाहिए। हार्ट रेटिंग नहीं करनी चाहिए जिससे कि आपको नींद आ जाए। ठीक है, अब बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ स्लीप वेक डिसऑर्डर इन DSM-5 में कैसे किया गया है। DSM-5 में क्लासिफाई किया गया है इंसोम्निया डिसऑर्डर, हाइपरसोमनेंस डिसऑर्डर, नार्कोलेप्सी, ब्रीदिंग रिलेटेड स्लीप डिसऑर्डर, सर्केडियन रिदम स्लीप डिसऑर्डर, नॉन रैपिड आई मूवमेंट अराउजल डिसऑर्डर, नाइटमेयर डिसऑर्डर, REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर।
स्ट्रेस मेडिकेशन ड्यूस स्लीप डिसऑर्डर, और क्लासिफिकेशन आपका स्लीप वेक डिसऑर्डर ICD-10 के हिसाब से कैसे किया गया है। नॉन ऑर्गेनिक में क्या क्या आ रहा है, जिसमें कोई ऑर्गेनिक वो सिम्टम्स नहीं है, बॉडी के सिम्टम्स, ठीक है, जो इंसोम्निया, हाइपर इंसोम्निया, नॉन ऑर्गेनिक डिसऑर्डर, स्लीप वेक साइकिल, स्लीप वॉक नाइटमेयर्स, नाइटमेयर्स, अदर नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर, नॉन ऑर्गेनिक स्लीप डिसऑर्डर। अब आपका आ जाता है ऑर्गेनिक ओरिजिन, कि बॉडी में कुछ प्रॉब्लम्स हैं उस वजह से हो रहा है, नार्कोलेप्सी है, क्लीन लेवन सिंड्रोम, स्लीप एपनिया, एपिसोडिक मूवमेंट डिसऑर्डर, ये डिसऑर्डर्स हैं, क्लासिफाई किया गया ऐसे। फिर आता है आपके ऑर्गेनाइज बाय पॉसिबल अनआरईएम और आरईएम स्टेज के हिसाब से कैसे क्लासिफाई किया गया। अब जैसे स्टेज 1 और स्टेज 2 के अनआरईएम स्लीप में क्या हो सकता है, स्लीप माइकोलोनस, और स्लीप स्टार्स, स्लीप ट्विचेस हो सकता है, एक्सप्लोडिंग हेड सिंड्रोम हो सकता है, टीथ ग्राइंडिंग हो सकता है, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट डिसऑर्डर। आपका नॉन रैपिड आई मूवमेंट स्लीप में क्या हो सकता है, स्टेज 3 में नाइट टेरर्स हो सकते हैं, स्लीप वॉकिंग हो सकती है जिसमें आप स्लीप में चलते हो, कंफ्यूजनल अराउसल्स होता है, पार्शियल वेकिंग विद स्लीप इनर्शिया, पीरियोडिक लिम्ब मूवमेंट PLMD हो सकती है, स्लीप रिलेटेड ईटिंग डिसऑर्डर हो सकता है, नाइटमेयर एंड नाइटमेयर डिसऑर्डर, REM स्लीप बिहेवियर डिसऑर्डर, ये सब डिसऑर्डर आपके REM स्लीप में हो सकते हैं। लेट्स टॉक अबाउट हाउ टू टेस्ट। ओके, स्लीप स्टडीज कर सकते हैं लैब में, होम में कर सकते हैं। लैब में कैसे आपका स्लीप पैटर्न है, आप सो रहे उठ रहे हो, क्या क्या चीजें हो रही, दैट इज हाउ यू डू दैट। एंड EEG में आपका वही आपके वेव्स को मैपिंग करके आपकी चेकिंग कर सकते हैं। स्लीप स्टडी एट होम में भी आपके वही चेक कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिनोग्राफी में क्या करते हैं, ये डिफरेंट टाइप ऑफ थिंग है। इसमें आपका क्या होता है, एक वॉच टाइप का आपका ट्रैकर पहनाते हैं आपको, दैट चेक्स योर circadian rhythm which we talked about before, the melatonin activity and how you're waking up and how you're feeling drowsy, and then you're slowing down, and then you're feeling sleepy, and then you're sleeping. Multiple sleep latency system, SMLT. This test examine whether the person is prone to falling asleep during daytime, क्या बंदा डे टाइम में भी सोने की कोशिश कर रहा है। इट इज ऑफन अ की पार्ट ऑफ डायग्नोसिंग नार्कोलेप्सी, नार्कोलेप्सी और हाइपरसोमनोलेंस की वजह से ये किया जाता है। This test looks maintenance for wakefulness test, MWT. This test looks for whether or not a person can resist falling asleep in situation where it would not be easy to do. अगर आप सर्जरी कर रहे हो तो आप ये नहीं सोचोगे ना कि मैं सो जाऊं, और आप ड्राइविंग कर रहे हो तो आप सोओगे नहीं, क्योंकि आपके लिए जान का खतरा हो सकता है, एनी एक्सीडेंट कैन हैपन। So at that time, point of time, how you're resisting falling asleep, that is what the thing is. Okay. So this is all about sleep and how the sleep disorders are qualified and their stages and sleep cycles. Okay, and the circadian rhythm. In my next video, I will talk about insomnia disorder. So if you have any questions regarding sleep, or what is sleep, or why do we sleep, or how do we sleep, or any questions on sleep stages or circadian rhythm, please comment in my comment section. And if you have any problems regarding this video, please comment in my comment section. Thank you, and be there for the next video, insomnia disorder. Thank you.